ایک وقت تھا کہ بجلی کی تار کو ہاتھ لگانے سے جھٹکا لگتا تھا۔ آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت نجی پاور پلانٹس کے مالکان میں شریف خاندان، زرداری خاندان، داؤد خاندان، میاں منشا خاندان، جو ملکی وسائل کو دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے اور حتیٰ کہ منہ اور ناک کے ذریعے دن رات لوٹ رہے ہیں۔ اور بہت سے غریب عوام، اگر آپ ان سے اس وقت بات کریں گے تو وہ پاکستان سے زندہ بھاگ کا نعرہ لگاتے دکھائی اور سنائی دیں گے۔ ویسے تو ملک خداداد پاکستان حکمران طبقے کی نالائکی اور بدعنوانی کے باعث ایک لمبے عرصے سے مہنگائی، بے روزگاری اور امن عامہ سمیت لا تعداد معاشی و معاشرتی مسائل سے دوچار ہے، اور عوام کو لاحق مشکلات اور مصائب میں مسلسل بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جو مسئلہ اس وقت بنیادی اہمیت کا حامل ہے وہ بجلی کی قیمت ہے۔ ایک وقت تھا کہ بجلی کی تار کو ہاتھ لگانے سے جھٹکا لگتا تھا، مگر رفتہ رفتہ یہ صورت ہو چکی ہے کہ بجلی کا نام لینے سے ہی اچھے بھلے لوگوں کے دل و دماغ میں تشنج کی سی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، دل ڈوبنے لگتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ادھر بجلی کا ذکر ہوا اور لوگوں کے ہاتھ سے ضبط کا دامن ہی چھوٹ گیا، کوئی تو رونے لگ گیا، تو کوئی حکومتوں اور متعلقہ اداروں کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا۔ چوکوں اور چوراہوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، تفریحی مقامات پر اور ہوٹلز میں عام طور پر بجلی کے روز افزون نرخ زیر بحث آتے ہیں اور سابقہ و موجودہ حکومتوں پر جائز اور روا تنقید کا دروازہ کھولے رکھتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ بجلی کے ایک یونٹ، جی ہاں محض ایک یونٹ کی قیمت 70 روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی اور بھی مہنگی ہے، جبکہ آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی ہم پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بعید نہیں، جس وقت ہم آپ سے اس بات چیت میں مصروف ہیں، حکومت عین اسی وقت بجلی کی قیمت کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کر کے اس کا اعلان بھی کر دے۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں بجلی کی مجموعی پیداوار 46,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے۔ 28,811 میگا واٹ بجلی تھرمل ذرائع سے بنائی جاتی ہے، جبکہ 10,635 میگا واٹ بجلی آبی وسائل سے حاصل ہوتی ہے۔ ہوا کے ذریعے 1,838 میگا واٹ، جبکہ شمسی قوت کے ذریعے 882 میگا واٹ بجلی ملتی ہے۔ گنے کے پھونک سے 249 میگا واٹ بجلی بنتی ہے اور ایٹمی یعنی نیوکلیئر ذرائع سے 3,620 میگا واٹ بجلی کا حصول ممکن ہو پاتا ہے۔ بجلی کے پیداواری ذرائع کے حوالے سے پہلا تضاد تو یہی نشان زد ہو جاتا ہے، وہ ایسے کہ پاکستان میں آبی وسائل کے ذریعے لاکھوں میگا واٹ بجلی تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس وقت کل بجلی کا نصف تھرمل ذرائع سے تیار کیا جا رہا ہے۔ آبی وسائل سے بننے والی بجلی زیادہ سے زیادہ چند روپے فی یونٹ اخراجات لیتی ہے، جبکہ تھرمل بجلی کے حصول کے لیے کوئلہ، فرنس آئل اور مختلف گیسز جلائی جاتی ہیں، جو ظاہر ہے پانی سے بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہیں۔ پھر ایک اہم بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ پانی سے بجلی بنانے سے فیول کا خرچ صفر رہ جاتا ہے، بلکہ مزید یہ کہ زمینوں کو آبپاشی کے لیے نہریں اور انسانوں کو پینے کے لیے بآسانی پانی کے وسائل جا بجا حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن فیولز کے جلانے سے فضا کی آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ پانی سے بجلی بنانے والا ادارہ وابڈا یعنی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جبکہ ایٹمی بجلی گھر الگ اتھارٹیز کے تحت کام کرتے ہیں۔ سولر سسٹم اپنی مدد آپ کے تحت لگائے جا رہے ہیں، اور لگ بھگ نصف بجلی تو نجی ملکیت بجلی گھروں کے ذریعے فراہم ہوتی ہے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ یہی نجی بجلی گھر ہی فساد کی اصل جڑ ہیں۔
बगौर समझा जाए तो पता चलता है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारत की राह से बगावत की समत अख्तियार करते हुए हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला पर ही कब्जा जमा लिया था, तो इस वक्त निजी बिजली घरों के मालिकान ने भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर रखी है कि मुल्क की मुआशी शहरग उनकी कड़ी गिरफ्त में है। पाकिस्तान में इस वक्त कमोबेश 42 निजी बिजली घर हैं जिन्हें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs कहा जाता है। ये सब IPPs थर्मल यूनिट्स हैं, यानी मुख्तलिफ फ्यूल्स के जरिए चलाए जाते हैं। मुल्क में सबसे पहली निजी पावर कंपनी हब पावर कंपनी थी, जिसका मंसूबा सन 1988 में बेनजीर भुट्टो हुकूमत के दौरान बना। उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने बीबी की हुकूमत को अचानक रुखसत कर दिया, तो नवाज शरीफ फ्री मार्केट इस्लाहात का एजेंडा लेकर वजारत उज़्मा के ओहदे पर विराजमान हो गए। सन 1992 में नवाज शरीफ हुकूमत में हबको पावर प्लांट के मुआहदे पर दस्तखत हुए। ये प्लांट 3581 मेगावाट बिजली बनाता है। उस वक्त मुआहदे में लिखा गया कि रियासत पाकिस्तान बिजली खरीदे या ना खरीदे, बिजली की जरूरत हो या ना हो, बिजली बनाने की कैपेसिटी के मुताबिक प्लांट के मालिकान को अदायगी लाजमी करना होगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये रकूम डॉलर्स में अदा की जाएंगी। इसमें आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों का उतार चढ़ाव उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाता, और उसके बाद रुपए की कीमत ऊपर नीचे होने से आप अदायगी डॉलर्स में करते हैं। अवाम पर फी यूनिट बिजली का बोझ बढ़ता चला गया, और इसके साथ साथ कैपेसिटी पेमेंट्स का वादा भी कर लिया गया। दीगर निजी पावर कंपनियों के साथ आइंदा अदवार में जो भी मुआहदे किए गए, उनमें भी यही जालिमाना शराइत आयद की जाती रही। अब इस वक्त हालत यह है कि सर्कुलर डेट, जिसे गर्दिशी कर्जा भी कहा जाता है, वो कई बार तो 2200 अरब रुपए तक जा पहुंचता है, और यह गर्दिशी कर्जा दरअसल निजी पावर प्लांट्स की इसी कैपेसिटी पेमेंट के नतीजे में वजूद में आता है ना कमाल की बात। अब बिजली इस्तेमाल करें या नहीं, वो बिजली बनाएं या नहीं, प्लांट का एक हिस्सा चले या कभी वो भी ना चले, मगर प्लांट्स की पैदावारी गुंजाइश के एतबार से रियासत के जरिए सारिफीन की जेबों से हर सूरत भारी से भारी रकूम जबरदस्ती वसूल कर ली जाएंगी। इस वक्त निजी पावर प्लांट्स के मालिकान में शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, दाऊद खानदान, मियां मंशा खानदान और इन जैसे दीगर ताकतवर खानदान शामिल हैं, जो मुल्की वसाइल को दोनों हाथों और दोनों पांवों से और हत्ता के मुंह और नाक के जरिए दिन रात लूट रहे हैं। एक जानिब सियासत तो दूसरी जानिब कारोबार। ये तजाद पाकिस्तान में देखने वाली और सहने वाली सिर्फ बेबस अवाम है, जो निहत्ती है और कुढ़ने और जलने और खुदकुशियां करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। मशीनरी दिन ब दिन महंगी हो रही है, फ्यूल्स की कीमत भी बढ़ती जा रही है, ऊपर से बिजली के 34 करोड़ यूनिट सरकारी इदारों और अफसरान और अहलकारों को मुफ्त फराहम करना होते हैं। फिर सर्कुलर डेट अदा करना होता है, इस पर सूद दर सूद तो बहर सूरत अदा करना ही पड़ता है। फिर बेशुमार बिजली चोरी भी होती है, और ज्यादातर चोर मुल्क के बड़े लोग हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तरस से बाहर है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों डिस्कोस, पेप्को के जरिए इंतजाम चलाती हैं, और इन सब के ऊपर एक सफेद हाथी NTDC भी खड़ा है। कराची की सूरत हाल सबसे मखदूश है, जहां KESC नामी कंपनी ने शहरियों का जीना दो भर कर रखा है। आए रोज कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, मगर नतीजा सिफर। माहिरीन के मुताबिक बिजली की महंगाई के बायस मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में बतदरीज कमी आ रही है, सनतें बंद हो रही हैं, कारखानों में काम ठप हुआ पड़ा है, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं खाल खाल ही दिखाई देता है। घरेलू सार्फिन ही नहीं बल्कि सर्विसेज, कमर्शियल और काश्तकारी के सेक्टर्स में बिजली के इस्तेमाल में कमी आ रही है। बिजली के इस्तेमाल में कमी की मरकजी वजह इसकी महंगाई है।
फिर लोगों का शमसी तवानाई पर इन्हिसार बढ़ रहा है। और एक जानिब तो इससे लोगों को कुछ फायदा हुआ है, मगर रियासत को निजी बिजली घरों को अदायगियों में शदीद अदम तवाज़न का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर निजी बिजली घरों की बिजली लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो बिल कहां से आएगा, और अगर इस मद में वसूलियां नहीं होंगी तो निजी बिजली घरों को अदायगियां कहां से की जा सकेंगी। सन 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सोलर जराए से 0.8% बिजली हासिल होती थी, जिसमें अब 2 से 3 गुना इजाफा हो चुका है और मजीद इजाफा जारी है, क्योंकि लोग बिजली की फराहमी के रियासती निज़ाम पर मजीद एतबार करने को आमादा दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान में बिजली की मजमूई पैदावार में पन बिजली का हिस्सा 28.6%, न्यूक्लियर का 18.6%, RLNG का 17.1%, कोयले का 16%, कुदरती गैस का 11% और फर्नेस ऑयल का 4% हिस्सा है। मुल्की ज़राए से हासिल करदा कोयले से बिजली की पैदावारी लागत 5 से 7 रुपए फी किलोवाट है, जबकि दरामदी कोयले से यही लागत 15 से 25 रुपए फी किलोवाट तक बढ़ जाती है। और हालत यह है कि थर कोल का प्रोजेक्ट 50 बरसों से इल्तबा का शिकार है। और अभी तो शुक्र यह है कि गुज़िश्ता हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो थी, उसने बहुत जोर लगाकर निजी बिजली घरों के लिए डॉलर की कीमत को 160 रुपए पर फिक्स कर दिया था, जिससे गर्दिशी कर्जा कुछ कंट्रोल में है। वगरना जिस तरह डॉलर की कीमत 300 रुपए तक गई थी, गर्दिशी कर्जा भी कंट्रोल से बाहर हो जाता। अब इन हालात में कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है कि सबसे बड़े निजी पावर प्रोड्यूसर हब पावर कंपनी ने कहा है कि पाकिस्तान में बिजली का इस्तेमाल कम होता चला जा रहा है। इदारे ने यह पेशगोई भी की है कि बिजली की महंगाई के बायस फैक्ट्रीज और कारखाने बंद हो रहे हैं और सन 2024 में मुल्क में बिजली का इस्तेमाल मजीद कम हो जाने का अंदेशा है। हबको के मुताबिक सन 2023 में बिजली के इस्तेमाल में छठा हिस्सा कमी आई। हबको को अपनी गुंजाइश के मुताबिक इस बरस 3.5 मिलियन टन कोयला दरकार है, लेकिन ये कंपनी महज 7,50,000 टन कोयला खरीदने का इरादा रखती है। इसका मतलब यह है कि हबको अपनी कुल गुंजाइश का 5वां हिस्सा बिजली बनाएगा और गलत मुआहिदों का फायदा उठाते हुए कीमत पूरी गुंजाइश की ही अदा की जाएगी। अब मामला यह है कि गुज़िश्ता 40 सालों से जो बोया है वो काट रहे हैं। पॉलिसीज गलत बनाई गई। हर शख्स पाकिस्तान में अपनी जात से आगे नहीं सोचता, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मंसूबे का ताल्लुक पूरे मुल्क से हो, पूरे मुल्क की आवाम से हो, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि मेरा फायदा क्या है। यही वजह है कि इस किस्म के मुआहिदे ड्राफ्ट होते हैं, जिनमें मुआहिदा करने वालों का तो फायदा ही फायदा होता है, लेकिन आवाम का नुकसान होता है। अब अगर बिजली के बिलों की मारी आवाम सोलर पावर की तरफ आती है तो खबरें गर्दिश करने लग जाती हैं कि सोलर एनर्जी पर भी टैक्स लगाया जाएगा। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लोगों के साथ शर्त लगी है कि तुम जिंदा रह के दिखाओ, हम तुम्हें इस मुल्क में जिंदा रहने नहीं देंगे। और बहुत से गरीब आवाम, अगर आप उनसे इस वक्त बात करेंगे तो वो पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लगाते दिखाई और सुनाई देंगे। मेरी गुजारिश है हल्का अहबाब से, जो लोग इस वक्त इक़्तिदार के ईवानों में मौजूद हैं, कि इन मुआहिदों पर बेशक अगर आपको इंटरनेशनली किसी बॉडी को इन्वॉल्व करना पड़ता है, उसको इन्वॉल्व कीजिए, जो हो सकता है वो कीजिए। छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं तो वो बनाइए, सोलर फील्ड्स बना सकते हैं तो वो बनाइए सोलर एनर्जी के लिए। और जो लोग निजी तौर पर सोलर एनर्जी के ज़रिए बिजली पैदा करना चाहते हैं, उनको प्रमोट कीजिए। उनके इस अमल को मज़ीद मुश्किल ना बनाइए, इसमें उनके लिए आसानी पैदा कीजिए। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि मई में इस वक्त दर्जा हरारत 45, 46, 47 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। जो एनवायरमेंटल चेंज है वो एक बहुत बड़ा खतरा है जो पूरी दुनिया के ऊपर मंडला रहा है। सोलर एनर्जी
क्लीन एनर्जी की तस्वुर की जाती है। अगर लोग सोलर एनर्जी की तरफ आएंगे तो वो हमारी एनवायरनमेंट, हमारे माहौल के लिए भी बेहतर है, एक माहौल दोस्त सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम दरखास्त ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जब तक कोई सुनता नहीं हम अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे, दरखास्त करते रहेंगे और लोगों तक आगाही पहुंचाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।